Okay, now I come to the subject gravitation. What is the gravitation? What is the gravitational force? And what is the force of gravity? And what is the acceleration due to gravity? I will discuss all these questions in this class along with numerical. Okay? Then, first of all, gravitation. Gravitation is the property by which every body in the universe attract to each other. Everybody in the universe, even me attracted to you, you attracted to your friends just sitting behind you, beside you. You are also attracting sun, moon, earth. But this force of attraction depends upon some factor. What are those factors? I will discuss all these things. And if gravitation is the property, then what is the gravitational force? Force exerted due to gravitation is called gravitational force. And force of gravity Force of gravity is the force exerted by earth. Gravitational force exerted by earth. Gravitational force exerted by earth. Towards its center. Is center. I think these three terms are clear now. Gravitation is property by which every body in the universe attract to each other. Gravitational force of attraction between two bodies. Gravitational force. And force of gravity, gravitational force exerted by earth. And all these three terms are nearly equal to same, but not same. Okay? Now, something more about gravitation and gravitational force. तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशन की, तो ग्रेविटेशन में हम लोग न्यूटन को नहीं इग्नोर कर सकते, बिकॉज जैसे हमने बताया था ना कि जहां भी हम ग्रेविटेशन जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है हम देखते हैं कि समवन इज सिटिंग ऑन द ट्री एंड जस्ट फ्रूट इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, फॉलिंग डाउन टू द अर्थ. तो ये रियलाइजेशन सबसे पहले किसने किया? इस चीज को रियलाइज किया न्यूटन ने. और न्यूटन ने इसको रियलाइज ही नहीं किया, इसको मैथमेटिकली उन्होंने डराइव भी किया और बताया भी. तो यहां पे स्टार्ट होता है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, नाउ जस्ट we should think about Newton's universal law of gravitation. Okay, Newton's universal law of gravitation. So what was Newton's universal law? See here, Newton's universal law of gravitation. जैसे भी हमने ग्रेविटेशन में बताया था, each and every body in the universe attract to each other. Okay, each and every body, and that force of attraction is called gravitational force. Newton has given just a mathematical expression of all these statements, and their statement is called Newton's law of gravitation. Accordingly, each and every body in the universe
Accordingly, each and every body in the universe attract to each other. And force of attraction is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to a square of distance between them. ओके, स्टेटमेंट तो हमने लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बट यहां पे दो टर्म को बताना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्हाट डज इट मीन? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपात। इट मीन्स दैट if one quantity is increasing, other will also increase. Okay? And inversely proportional का होता है उल्टा, if one quantity is increasing, another one will decrease. Clear? तो यहां पे हम कह सकते हैं कि gravitational force and force of attraction is directly proportional to product of their masses. यानी if the mass of a body will get increased, then force of attraction will also increase. And if distance between them increase, force will decrease. वो भी square proportion, square form में. Okay? If distance between body decrease, force will increase. Just move up. Clear? अभी इस पे मैथमेटिकल क्वेश्चन भी करेंगे और क्लियर होगा। तो आई थिंक स्टेटमेंट इज क्लियर। देन जस्ट अब इसी स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। जस्ट से हियर लाइक दिस मींस दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन व्हाट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a square of distance between them. क्लियर? अब दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये हो जाता है F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, एंड नाउ इट बिकम्स F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। टू बॉडीज आर समवन लाइक दिस। मान लो एक बॉडी हमारा ये है m1 का, दूसरा बॉडी ये है m2, इनके बीच का सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस डिफाइन है दैट इज द r। बस यही चीज है यहाँ पे। ये भी एक फोर्स लगा रहा है, ये भी एक फोर्स लगा रहा है, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? अब थोड़ा सा इसको और आगे मूव करते हैं। जैसे यहां पे हमने लिखा कि यहां पे तो हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया था और यहां पे हमने इक्वलिटी का लगा दिया, तो ये कैपिटल जी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल जी? ओके, देन हियर कैपिटल जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जैसे हमने बताया ना कि मास विल इंक्रीज then force will also increase, but what was initial value? हम कर सकते हैं इनिशियली
ये था मास जो था वो फोर्स का डबल था, तो हमेशा वो तो डबल रहेगा ना, इंक्रीज होने के बाद भी क्या रहेगा, डबल। तो ये जो डबल का कॉन्सेप्ट आया, दैट इज द कांस्टेंट, दैट इज द कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है। नाउ समथिंग मोर अबाउट कैपिटल जी। ओके, here I have just written that F is equal to Z m1 m2 upon r square, where capital G is called is constant of proportionality, is constant of proportionality called universal gravitational constant. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब होता है इट विल बी कांस्टेंट इन एनीवेयर इन द यूनिवर्स, नेवर बी चेंज, यानी कैपिटल जी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, एंड दिस वन इज द फिक्स वैल्यू, g is equal to 1.67 into 10 to the power minus 11, ठीक है, अब दैट इज द न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी यूनिट की चर्चा हम बाद में करेंगे, क्लियर। तो ये इसकी वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू 1.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे देखो, अब हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वो बेसिकली किस चीज पर डिपेंड किया, इट्स डिपेंड अपॉन मास ऑफ द टू बॉडीज, इट्स डिपेंड अपॉन अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मास के डायरेक्टली होता है और डिस्टेंस के इनवर्सली होता है, क्लियर है। अब इस पे हम एक दो क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा उसमें हमें क्लियरिटी आएगी। जैसे जस्ट राइट डाउन अ क्वेश्चन, लिखो एक क्वेश्चन आप लोग, फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स, find gravitational force of attraction between two bodies of masses 200 kg and 100 kg, separated by distance distance 2 मीटर। क्वेश्चन सबको क्लियर है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें निकालना है क्या, वो पहले देखो क्या निकालना है हमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जी की वैल्यू हमें दे रखी है, अभी क्वेश्चन में भी दिया रहेगा, अब यहां भी हमने लिख रखा है, एंड मासेस कितना दिया हुआ है, दैट इज द m1 m2, हियर m1 इज गिवन 200 kg and m2 is given 100 kg and r is given 2 मीटर दिया हुआ है, जी की वैल्यू में मालूम है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जी की वैल्यू रख दो 6.67 10 to the power minus 11 into m1 200 into m2 100 upon 2 the whole square, that is the 4। क्लियर है। ये जो रिजल्ट आएगा हमारा वो हमारा न्यूटन हो जाएगा आंसर, जितना भी हो इसको हम निकाल लेंगे हम लोग, वो हमारा, ये तो इजीली निकल आएगा ना, 2 4 का 25, ये 25 और बाकी मल्टीपल कर लो, आंसर आ जाएंगे तुम्हारे इजीली,
क्लियर है? अब एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि तुम लोग के बुक में भी मिलेगा। वो कौन सा क्वेश्चन है? जैसे कि हम कहते हैं ना, इन जनरल वे हाउ द फोर्स of attraction, a gravitational force affected if distance between body becomes double, if masses of the body becomes double। इस टाइप का क्वेश्चन है ना। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं और हम उसका फिर सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? हाउ ग्रेविटेशनल फोर्स विल चेंजेस force will changes if masses of the body, if फर्स्ट केस लिखते हैं इसको, if first masses of the bodies becomes double, एंड दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन देम रिड्यूस टू हाफ। दो केस हमने बना दिया। पहला केस क्या कहता है कि मासेस ऑफ द बॉडीज बिकम्स डबल, और दूसरा कहता है डिस्टेंस बिटवीन देम रिड्यूस टू हाफ। इतना तो पता होगा कि जैसे मास डबल होता है तो भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा। हमने बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस मींस डिस्टेंस रिड्यूस टू हाफ मींस अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स विल इंक्रीज। इतना तो तय, बट हाउ, किस फैक्टर के साथ, दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वो भी इंपॉर्टेंट है। कितना इंक्रीज करेगा, वाई, व्हाट फैक्टर। तो अब हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का हेल्प लेंगे। यहां पे देखो जी कांस्टेंट है हमारा, एफ डायरेक्टली एफ। अब इसको हम क्या कहते हैं ना, चेंजेस केस को F2 का देते हैं और इनिशियल केस को F1 का देते हैं। जस्ट राइट डाउन। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है ना, जैसे देखो हम लोग कहते हैं ना कि A प्रोपोर्शनल टू B मींस दैट क्या होता है कि इफ टू A देन इट विल बी आल्सो टू B डबल। इनवर्सली में उल्टा चलेगा। तो हम इसको मैथमेटिकली लेके बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक यू ऑल ऑफ यू हैव नोटेड डाउन, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। डू इट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे F हमें पता है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ये हमने पहला केस ले लिया जब कोई चेंजेस नहीं हुआ था। अब हम यहाँ पे दूसरा केस यहां लिख देते हैं जब हमारा चेंज हो रखा है। क्या चेंज हुआ है, g तो वही है, कभी चेंज नहीं करता। m1 बिकम्स 2m1 एंड m2 बिकम्स 2m2। r कोई चेंज नहीं हुआ है फर्स्ट केस में। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, g से g कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, m1 से m1 कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल, and f1 becomes and f1 upon f2 becomes 1 upon 4, imply that f2 becomes 4 times of f1 डायरेक्ट। देखो रिजल्ट आ गया, यानी हम क्या कर सकते हैं कि फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स। क्लियर है? क्लियर है? देखो 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 मुस्कुरा रहा। ओके नाउ, अब नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट सेकेंड क्वेश्चन से? सेकेंड क्वेश्चन से डिस्टेंस बिटवीन देम रिड्यूस टू हाफ, मतलब उनके बीच की जो दूरी है वो क्या कर दी गई है, हाफ कर दी गई है। तो इतना तो तय है कि हाफ हुआ है तो वहां पे फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, दैट विल इंक्रीज अप।
तो इंक्रीजिंग के केस में यहां पे देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का वैसे तुम याद भी रख सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। जैसे 2 टाइम से बढ़ रहा था तो 2 गुना 2 4, इट बिकम्स 4 टाइम्स एंड रिड्यूस टू हाफ के केस में। बट अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का कंसेप्ट याद रखते हो तो तुम्हें क्लास 11th में भी फायदा हो जाएगा, और सिर्फ यहां नहीं कहीं भी प्रोपोर्शनलिटी वाले कंसेप्ट में फायदा होगा। ओके, तो जस्ट सी हियर सेकेंड पार्ट, फॉर द सेकेंड पार्ट तो हम फिर यहां से लगा देते हैं F1 इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, और व्हाट बिकम्स F2 G M1 M2 R अपॉन 2 द होल स्क्वायर। देखो वॉट एवर क्वांटिटी चेंजेस उसी को हम लोग चेंज करते हैं, बाकी एज इट इज रह जाता है। क्लियर है? तो अब देखो इसको हम लोग और लिख सकते हैं F1 अपॉन F2 इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर अपॉन 4G M1 M2। अब आप इसको कट कर दो, क्या रह गया बताओ? F1 upon F2 1 upon 4 imply that F2 is equal to 4 times of F2। थोड़ी मुश्किल लगेगी बट ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्लियर? थोड़ी मुश्किल हो सकती है बट ज्यादा मुश्किल नहीं है। बट ये कंसेप्ट आगे तक फायदा करेगा। जैसे यहां पे एक स्टेप हम और कर देते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, इसको हम ना यहां पे एक स्टेप हम थोड़ा सा और कर देते हैं। चलो कोई देखो, अब यहां पे एक स्टेप और कर देते हैं। हाँ समझ नहीं आ रहा ना, एक स्टेप और मोर। देखो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको इक्वल टू में लिख सकते हैं F1 अपॉन F2 दैट इज द G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर होल। ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। अब आई थिंक क्लियर होगा। इंप्लाई दैट F1 अपॉन F2, यहां देखो R स्क्वायर से R स्क्वायर, इससे ये कट गया, पूरा हो गया हमारा 1 अपॉन 4 एंड दैट्स व्हाई F2 बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ F1। अब तो क्लियर होगा। यहां पे इस स्टेप को हमने यहां पे एक स्टेप और बढ़ा के कर दिया। क्लियर है? ओके, देन थोड़ा सा और हम लोग मूव करते हैं। जैसे अभी हमने बताया कैपिटल G, और लेट्स थिंक मोर अबाउट देम। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिया होगा तुम लोगों ने। अभी जैसे हमने बताया था कि जी के बारे में थोड़ा सा और हम लोग देखेंगे। अभी तो हमने जी को बताया, जी इज नथिंग बट जस्ट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बट अगर थोड़ा सा और आगे जाते हैं, या फिर एक सिंपल सा एक क्वेश्चन को ही लेके चलते हैं। जैसे हमने कहा था ना कि F इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अगर यहां पे M1 की वैल्यू रख दी जाती है 1 kg, M2 की वैल्यू रख दी जाती है 1 kg, R की वैल्यू रख दी जाती है 1 मीटर, then what happened to this equation? Then this equation becomes F is equal to G into 1 upon 1 the whole square, यानी F is equal to G। तो बताओ इससे क्या पता चला, क्या इंफॉर्मेशन मिली इससे? इससे इंफॉर्मेशन मिला कि कैपिटल जी है वो कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक कंडीशन में किसके बराबर हो जा रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो रहा है। Thus capital G can also define as gravitational force of attraction between two bodies
gravitational force of attraction between two bodies of mass 1 kg, 1 kg each, and separated by distance 1 मीटर, है ना। देखो यही चीज है ना कि अगर 2 केजी, दो एक केजी का बॉडी रहेगा और उसको हम 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे तो उसके बीच जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लेगा, दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल जी, एंड उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन। यानी क्या आंसर मिला, इफ टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg separated by distance 1 meter, then gravitational force of attraction between them becomes equal to 6.67 into 10 to the power -11 Newton. And that particular force is called universal gravitational constant. Clear? ओके अब इस क्लास को हम अभी यहीं पे एंड करेंगे। अगली क्लास ग्रेविटेशन 2 सीरीज 2 के नाम से आएगा कंटिन्यूअसली, बट इससे पहले हम अभी निकालेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड अर्थ, हाउ वी कैन कैलकुलेट, है ना। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। Gravitational force of attraction between sun and earth। देखो इसके लिए हमें क्या चाहिए, जैसे ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे थे, F इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगा देंगे, G मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम द होल स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए इसके लिए, सन का मास चाहिए, अर्थ का मास चाहिए और उनके बीच की दूरी चाहिए, हम निकाल लेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो ये जो होता है हमें पता है क्या, मास ऑफ सन हमें दिया हुआ है ms इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg, मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, एंड r दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। देखो मीटर यहां रखेंगे नॉट किलोमीटर, क्योंकि 15 करोड़ किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, तो उसको हमने मीटर में बदल दिया 1.5 into 10 to the power 11 मीटर। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू एंड कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड अर्थ। पुट दिस वैल्यू, जी की वैल्यू तुम्हें पता है 6.67 10 to the power -11, मास ऑफ द सन हमने दे दिया है 2 into 10 to the power 30, mass of the earth 6 into 10 to the power 24, and r 1.5 into 10 to the power 11 the whole square. And now this becomes equal to what, put the value 6.67 into 10 to the power -11 into 12 into 10 to the power कितना हो जाएगा बताओ, 34 24 54, and this one is the 2.25 into 10 to the power what 22। अब इनको तुम लोग सॉल्व कर लो, जस्ट सॉल्व इट। चौरासी 84 18 80 एंड 80 पॉइंट समथिंग ये हो गया आपका, और ये हो गया 10 टू द पावर कितना, देखो 22 है 11 है, ये ऊपर जाके माइनस जाएगा, यानी -33 इसमें से माइनस कर दो तो 21 बच गया, और अपॉन में 2.25, इतना न्यूटन आ गया तुम्हारा जो भी। अब इसको तुम और भी सॉल्व कर सकते थे, हम लिख देंगे 8004/225 into 10 to the power 21, इनको एडिशन में लिया, है ना, एंड दैट विल बी न्यूटन। दिस वन इज द फोर्स बिटवीन सन एंड द अर्थ।
क्लियर? इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं बच्चों, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे मोर डिस्कशन ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. Okay, thank you and bye everyone.